Good morning, student. My name is Didiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is our lecture of fundamental of ICT. In our last lecture, we completed our fourth unit. Okay. Now what is our fourth unit? That is presentation tools. So in that unit, what we learn? We learn about how to create presentation, then how we can add audio, video, then pictures, and then we can add shapes and chart table in our presentation, and with the help of this element we can make our presentation more attractive and more readable. Okay, so in our fourth lecture we learn about how to create a presentation. Now our fifth unit, that is basics of internet. So today we are going to start our fifth unit, that is basics of internet. In that unit what we learn? We learn about the basic concept of internet. Then we studied various concept of web service and www, that is our world wide web. Okay, so today we are going to learn about world wide web, then what is internet, intranet, then what is website and web pages. Okay, so these all the topics today we are going to cover in this lecture. Now first of all we'll start with world wide web. Okay, so here you can see world wide web, that is called as a www. Okay, so it is one of the most popular service available on the internet. Now what is www? वो क्या है? That is very important service. वो कहाँ पे अवेलेबल है? On a internet. Okay, so it is a subset of internet and it is present text, images, video, animation, sound and other element in the single element. Okay, so यहाँ पे देखो जो हमारा www है वो क्या है? सबसेट है. किसका सबसेट है? इंटरनेट का सबसेट है. और वो क्या क्या प्रेजेंट करता है? हम लोग उस पर टेक्स्ट भी देख सकते हैं, देन इमेज देख सकते हैं, यू कैन सी द एनिमेशन ऑल्सो, यू कैन सी वीडियो, साउंड एंड अदर मल्टीमीडिया element. Okay, so this world wide web, that is the most popular service that is available on the internet, and this www was central to development of information age and it is primary tool billions of people use to interact on the internet. मतलब हम लोग को जो इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट करना है, then this our world wide web, that is very primary tool. Okay, so this www is an information space where documents and other web resources are identified by the URL. ये देखो तो जो हमारा www है वो क्या है? उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और जो ये वेब रिसोर्स है वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? बाय देयर URL. उनके खुद के URL रहते हैं, उनसे वो आइडेंटिफाइड होते हैं. ओके, सो बेसिकली जो हमारा www है वो क्या है? तो पॉपुलर सर्विस है जो किस पे अवेलेबल है? ऑन द इंटरनेट. ओके, देन our next topic, that is what is internet. ओके, सो अभी इंटरनेट क्या रहेगा? The internet is a network formed by cooperative interconnection of comprising network. In fact, the word interact is called by two words, that is interconnection and network. देखो इंटरनेट में क्या रहता है कि वहाँ पे इंटरकनेक्टेड बहुत सारे नेटवर्क रहते हैं, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ओके, तो जो हमारा इंटरनेट है वो दो शब्दों से बना है. द फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? दैट इज इंटरकनेक्शन एंड दूसरा वर्ड है हमारा नेटवर्क. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनेट. सो इंटरनेट में क्या रहता है कि बहुत सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स रहते हैं. So it means that thousands of connecting network, usually made of different types of computer and different topologies, are meet together so smoothly they are individually part appear to one network. मतलब जो भी हमारा इंटरनेट रहेगा उसमें क्या हो रहेगा? थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर रहेंगे, वो एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड रहेंगे विद द हेल्प ऑफ सब टोपोलॉजी.
टोपोलॉजी जो है वो हमने पहले पीरियड जो हम लोग ने रिलेशन पढ़ा है उसमें पढ़ा है। कौन कौन सी टोपोलॉजी है हम लोग ने पढ़ा है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ये क्या है? बहुत सारी टाइप्स है किसके? टोपोलॉजी के। तो ये क्या होगा? नेटवर्क में क्या क्या आएगा? बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स आएंगे। देन यू कैन यूज द डिफरेंट टोपोलॉजीज। ओके, सो these are connected network. तो इंटरनेट क्या है? these are connected network that use TCP/IP protocol and thus the internet is called as a network of network. देखो हमारा इंटरनेट क्या है? वो क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है और वो किससे कनेक्टेड रहता है? विद द हेल्प ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल। ओके, इसलिए इंटरनेट को क्या बोलते हैं? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स. So the internet can be defined as a global system of network computer together with their data. So internet क्या होगा? वो क्या है? ग्लोबल कनेक्शन है किसका? कंप्यूटर्स का विद देयर डेटा. ओके, सो बेसिकली इंटरनेट क्या होता है कि इंटरनेट होता है उसमें बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट विल लर्न अबाउट इंटरनेट. इंटरनेट हम लोग ने देखा कि बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो इंटरनेट क्या है? एन इंटरनेट इज एन सेट ऑफ इंटरनेट सर्विस inside a local network. Example, only accessible from workstation of the local network rather than the set of well-defined network that are invisible from the outside. देखो यहाँ पर क्या होगा? इंटरनेट क्या है? बेसिकली सेट ऑफ इंटरनेट सर्विस है. फॉर एग्जांपल है आपका वेब सर्वर है. ओके, तो क्या है? सेट ऑफ इंटरनेट सर्विस. वो क्या होगा? फॉर एग्जांपल वो एक्सेसिबल आपके सर्विसेज कौन रहेगी? एक्सेसिबल फ्रॉम द वर्क स्टेशन ऑफ लोकल नेटवर्क. देन दूसरा है सेट ऑफ वेल डिफाइंड नेटवर्क. ओके, सो it involve use of internet client server standard protocol such as for example the use of web browser. देखो इंटरनेट से में क्या होगा कि सेट ऑफ इंटरनेट सर्विस रहेगी जो हम लोग को यूज़ करनी है. तो वो क्या क्या इन्वॉल्व करेगी? वो इन्वॉल्व करेगी इंटरनेट क्लाइंट सर्वर स्टैंडर्ड. ओके, देन द इंटरनेट इज जनरली बेस्ड ऑन द 3-tier आर्किटेक्चर. जो हमारा इंटरनेट है वो जनरली यूज़ 3-tier आर्किटेक्चर. फर्स्ट तो आता है उसमें क्लाइंट. देखो आप लोग को 3-tier आर्किटेक्चर है हमारे इंटरनेट का. तो हम लोग ने जैसे बताया कि वो 3-tier आर्किटेक्चर है. तो फर्स्ट उसमें रहेगा क्लाइंट, दिख रहा है ना? क्लाइंट सबसे ऊपर. दूसरा है हमारा वन और सेवरल एप्लीकेशन सर्वर. वो क्या हो गया? वो पहला हो गया हमारा क्लाइंट, वो है हमारा वेब ब्राउज़र. और दूसरा हो गया हमारा एप्लीकेशन सर्वर. देन थर्ड है हमारा डेटाबेस सर्वर. ओके, सो ये क्या है? 3-tier एप्लीकेशन है. नेक्स्ट है डेटाबेस. तो फर्स्ट जो भी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देगा, रिक्वेस्ट देगा, वो किसके पास जाएगी? एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगी. देन वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? टू द डेटाबेस सर्वर. देन डेटाबेस सर्विस के पास जाके वो रिक्वेस्ट प्रोसेस जो होती है इन डेटाबेस और वो जो रिस्पॉन्स देता है वो प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन सर्वर एंड टू द क्लाइंट. ओके, सो ये क्या है? हमारा 3-tier आर्किटेक्चर है. किसका है? इंटरनेट का. देन ये देखो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ आवर इंटरनेट. इंटरनेट का एडवांटेजेस क्या रहेगा? तो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा सेविंग टाइम. जो इंटरनेट जो है वो सेव करता है टाइम. सो इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज शेयर इन अ रियल टाइम. ओके, देन दूसरा है प्लेटफॉर्म. दूसरा उसका एडवांटेज क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी. देन थर्ड एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब वो डिक्रीज करता है हमारा कॉस्ट. देन नेक्स्ट है वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी.
नेक्स्ट क्या है, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी. देन नेक्स्ट है सिक्योरिटी. दैट इज द मोस्ट फेमस एडवांटेज और मोस्ट पॉपुलर एडवांटेज ऑफ our इंटरनेट, दैट इज सिक्योरिटी. इट प्रोवाइड हाईली सिक्योर नेटवर्क. देन नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. ओके, सो ये जो हमारा इंटरनेट है दैट प्रोवाइड वेरी इजी एंड चीपर कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट हम लोग ने बोला टाइम सेविंग. ओके, तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस है. किसके एडवांटेजेस हैं, इंटरनेट के. ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्स्ट्रानेट. ओके, तो एक्स्ट्रानेट क्या रहेगा, एक्स्ट्रानेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी टू इट पार्टनर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क. सो एक्स्ट्रानेट क्या है, वो है एक्सटेंशन है. किसका एक्सटेंशन है, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का. जो वो कंपनी के बाहर जो भी उसके पार्टनर्स रहेंगे या जो भी वर्कर है उसके लिए वो लोकेट किया गया है. ओके, सो access to the extranet must be secure to the extent that the sum provides access to the information system from person located outside of the entrepreneur. देखो एक्सटेंशन में क्या होता है कि एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो जब भी हम लोग एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी मेजर इशू है. क्यों, क्योंकि जो पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है दे कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन. ओके, that's why the security is most common issue in the extranet. So यहाँ पे देखो, it is recommended to use HTTPS for the web page that are controlled from the outside to secure the transport of HTTP. देखो HTTP क्या है, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वो किसके लिए यूज होता है, टू सेंड एंड रिसीव द डेटा ऑन द इंटरनेट. तो भी हम लोग क्या करेंगे कि HTTP की जगह पहले हम लोग को यूज़ करना है HTTPS. ओके, सो एक्सट्रानेट क्या है, वो है एक्सटेंशन है किसका, इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन सिस्टम का. देन उसका आर्किटेक्चर ये रहा, फर्स्ट आता है हमारा इंटरनेट. देन उस साइड है हमारा इंटरनेट एंड जो बीच में एनवायरनमेंट है उसमें आपका रहेगा पब्लिक इंटरनेट. देन एक्सट्रानेट एंड इंट्रानेट. ओके, तो ये क्या है, जो एक्स्ट्रानेट जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक्सटेंशन है. तो इसका क्या है, आर्किटेक्चर है. ओके, देन व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रानेट. एक्स्ट्रानेट के एडवांटेजेस क्या रहेंगे, तो फर्स्ट है रियल टाइम मार्केट इंटेलिजेंस. फर्स्ट उसका एडवांटेज क्या रहेगा, रियल टाइम मार्केट इंटेलिजेंस. देन इम्प्रूव चैलेंज मैनेजमेंट. देन एक्सेस टू इनवॉइसिंग इंफॉर्मेशन. दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रानेट फॉर द एम्प्लॉय. देन कस्टमर के लिए क्या क्या एडवांटेज रहेंगे उसका, सेल्स फॉर इफेक्टिवनेस. देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. देन ऑनलाइन ऑर्डर एंट्री. देन ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट. ये क्या रहे हमारे कस्टमर एडवांटेजेस. देन पार्टनर एडवांटेजेस क्या रहेंगे कि रिडक्शन टाइम टू द मार्केट. देन पार्टनर कोलाब्रेशन. देन इम्प्रूव प्रोक्यूरमेंट्स. देन क्विकर रोल आउट. ओके, ये क्या है, एडवांटेज है ऑफ पार्टनर. द नेक्स्ट है हमारा सप्लाई. सप्लाई में क्या क्या रहेगा कि सप्लाई द डोमेन इंटीग्रेशन. देन डिलीवर सेल्स इनटू द पार्टनर एंड परफॉर्म ऑल वेब सर्वर. ओके, तो ये क्या है हमारा एडवांटेज है किसका, एक्स्ट्रानेट. तो एक्स्ट्रानेट क्या है बेसिकली, वो क्या है, एक्सटेंशन है किसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम का. ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, नाउ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज www. हमारा जो इंटरनेट है उसमें जो मोस्ट वाइडली यूज कंपोनेंट क्या है, दैट इज अवर www. ओके, सो इट इज अंडरस्टैंडिंग फीचर इज हाइपरटेक्स्ट, अ मेथड ऑफ इंस्टेंट क्रॉस रेफरेंसिंग. देखो हाइपरलिंक क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है किसका, हमारा
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्योंकि वो क्यों के यूज़ होता है फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग, यूज़ होता है वो क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए यूज़ होता है. सो इन मोस्ट वेबसाइट सर्टेन वर्ड और पेरेस appear in the text of the different color than the text, and often this text is also aligned. फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने बहुत सारी वेबसाइट विजिट की होगी, ओके. तो उसमें क्या रहता है कि ये जो हाइपरलिंक्स रहते हैं वो दूसरे लाइन में डिस्प्ले होते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल मेरा टेक्स्ट वाइट कलर में तो ब्लू लाइन से डिस्प्ले होगा या रेड लाइन से डिस्प्ले होगा, ऐसे अलग लाइन से डिस्प्ले होता है. और दूसरा क्या कि जो हमारा हाइपरटेक्स्ट रहेगा वो इसका कलर डिफरेंस रहेगा और वो क्लिकेबल रहेगा और उसमें अंडरलाइन होगी. जो भी हाइपरलिंक रहेगा उसमें अंडरलाइन होगी और जब भी वो लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी पेज उसके साथ अटैच किया है वो ओपन होगा, ओके. तो हाइपरलिंक वो क्या है, वो क्लिकेबल रहेगा. देन वो हम लोग का उसके वजह से हमारे जो भी टेक्स्ट रहेगा वो अंडरलाइन डिस्प्ले होगा, ओके. देन नेक्स्ट है वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या है? A server in a computer equipped with several software which provide a specific kind of service to the client software running on the computer. So देखो यहाँ पे a server is a computer equipped. वो सर्वर क्या है? वो कंप्यूटर इक्विपमेंट है. वो किसके लिए यूज़ होता है और क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड अ स्पेशल काइंड ऑफ सर्विस. वो क्या प्रोवाइड करता है? स्पेशल काइंड ऑफ सर्विस, ओके. सो देखो यहाँ पे द वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट आंसर रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर्स कंप्यूटर. वेब सर्वर क्या है कि वो स्पेशल कंप्यूटर है. वो जो भी यूज़र के क्वेश्चन रहेंगे वो उसका वो आंसर प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल आप लोग ने सर्च किया है अबाउट आवर इंडियन फ्लैग, तो वो सर्च आप लोग करते हैं वो किस पे जाएगा? जो भी हमारा वेब सर्वर है उस पर, और उसके अकॉर्डिंग जो वेब सर्वर है वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज अ वेब सर्वर. देन नेक्स्ट है हमारा क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. सो क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड रिफर टू द डिस्ट्रिक्ट IT enrollment that is designed for the purpose of remotely provisioning, scale and measure IT resources. तो देखो यहाँ पे क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रहेगा? क्लाउड को हम लोग कैसे रिफ़र कर सकते हैं? एज अ IT environment, district environment that is designed for the purpose of remotely providing scalable and measurable IT resources. मतलब वो क्या प्रोवाइड करता है? रिमोटली ये जो भी हमारा IT रिसोर्स है वो प्रोवाइड करता है. सो द टर्म ओरिजिनली एज अ मेटाफोर for the internet, which is essence of network, providing remote access to a set of decentralized IT resource. बेसिकली क्लाउड क्या रहता है? क्लाउड में हम लोग जो भी हमारा रिपोर्ट्स रह गए, मतलब जो कि डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग रिमोटली प्रोवाइड करते हैं, ओके. और क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग that provide shared computer processing resource. देखो यहाँ पे अभी क्लाउड में मैंने बताया कि उसमें क्या रहता है कि वो डिज़ाइन किया हो गया है फॉर रिमोटली प्रोविजनिंग IT रिसोर्सेज. तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? वो भी हमारा इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग ही है, बट वो किसके लिए यूज़ होता है? बेसिकली यूज़ होता है शेयर्ड कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है. And related to the computer and the other device on demand, it is the most enabling ubiquitous. देखो यहाँ पे जो हमारा रिमोट कंप्यूटिंग में क्या होगा? वो इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है, वो क्या प्रोवाइड करता है? शेयर्ड कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है, ओके.
So that is called as a cloud and cloud computing. Then next topic, that is basic internet terms. यहाँ पे वो बहुत सारे बेसिक इंटरनेट टर्म्स दिए। फर्स्ट है हमारा ब्राउज़र। तो देखो ब्राउज़र क्या रहे, ब्राउज़र इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेस वेब पेज एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ब्राउज़र क्या होता है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो जो भी हमारा वेब पेज है वो एक्सेस करता है और उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। देन आप लोग ने डाउनलोड तो सुना ही होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो डाउनलोड करते हो, फिर कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो, पिक्चर डाउनलोड करते हो। तो ये डाउनलोड का मीनिंग क्या होता है कि टू कॉपी द डेटा फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर, डाउनलोड लोकल कंप्यूटर। डाउनलोड रिफर टू द एक्टिविटी ऑफ मूविंग एंड कॉपिंग द डॉक्यूमेंट। डाउनलोड से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट से प्रोग्राम है उसको मूव करते हैं या कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं या कॉपी करते हैं। ओके। देन नेक्स्ट है अपलोड। अपलोड का मतलब कोई भी फाइल है उसको हम लोग सर्वर पे अपलोड करना है और सेंड करना है। सो टू सेंड डेटा फ्रॉम द लोकल कंप्यूटर टू द रिमोट कंप्यूटर। अपलोड क्या रहता है, जो भी हमारा लोकल कंप्यूटर है उसमें से हम लोग डेटा को रिमोट कंप्यूटर पे स्टोर करेंगे। देन ईमेल। ईमेल क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। वो क्या करता है कि हम लोग जो भी मैसेज प्रोवाइड करना है थ्रू द इंटरनेट, देन वी कैन यूज दिस ईमेल। देन नेक्स्ट है फिल्टर। फिल्टर क्या है, सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड टारगेट सीट टू बी फिल्टर ब्लॉक फ्रॉम द व्यू। देखो यहाँ पे फिल्टर का मीनिंग क्या रहेगा, मेरे पास आप लोग के मार्क्स है। फॉर एग्जांपल मैंने सबका ICT है तो मैं मैकेनिकल के भी स्टूडेंट का एक ही हमारा लिंक है। देन सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, तो भी क्या है एक ही फॉर्म में से मुझे क्या करना है, सिर्फ सिविल के मार्क स्टूडेंट के मार्क देखने, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, फ़िल्टर यूज़ करूँगी। तो फिल्टर से क्या करेंगे, जो भी हमारा टारगेट रहेगा उतना ही डेटा वो डिस्प्ले करवाएगा। देन होम पेज, मतलब कोई भी वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं तो फर्स्ट जो पेज जो डिस्प्ले होता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज। देन HTML। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो किसके लिए होता है, फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट। ओके। देन HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो किसके लिए होगा, द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स। प्रोटोकॉल क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स है, वो किसके लिए होते हैं, फॉर एक्सचेंजिंग द फाइल। देन नेक्स्ट है हमारा सर्च इंजिन। नाउ यहाँ पे अ वेब सर्वर दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सर्च इंजिन ओवर द वेब सर्विस। वो क्या होगा कि जो भी सर्च इंजिन से हम लोग डेटा फाइंड कर सकते हैं। देन URL, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट इज URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL क्या है, इट इज़ द इंटरनेट एड्रेस। URL क्या है, वो इंटरनेट एड्रेस है। तो ये सारे क्या है, बेसिक टर्म्स है किसके, इंटरनेट के। एक तो ब्राउज़र, डाउनलोड, अपलोड, द ईमेल, फिल्टर, होम पेज। ओके, ये क्या है, बेसिक इंटरनेट टर्म्स है जो आप लोग को पता होने चाहिए। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेब ब्राउज़र। देखो वेब ब्राउज़र अभी बताया अ वेब ब्राउज़र कंटेन द बेसिक सॉफ्टवेयर we need in order to find, retrieve, view and send information over the internet। वो क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये जिसके मदद से हम लोग जो भी हमारा इंटरनेट है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ओके, उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। नाउ इंटरनेट इंक्लूड द सॉफ्टवेयर दैट लेट अस इंक्लूड कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, द फर्स्ट वन सेंड एंड रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले क्या रहेगा, सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल। और दूसरी फैसिलिटी क्या रहेगी, रीड मैसेज फ्रॉम न्यू ग्रुप अबाउट थाउजेंड्स ऑफ पीक इन विच यूजर शेयर द इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट है हमारा ब्राउज़र
the www, where we can find rich varieties of text, graphics and interactive information. Okay, so ये क्या है कि ये सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टास्क हैं. सो वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या रहेगा, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रहेगा कि जिसमें हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर वो फाइंड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज URL. URL क्या रहता है कि एवरी सर्वर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ IP एड्रेस. मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारा एक नाम रहता है कि क्या एड्रेस रहता है, वैसे जितने भी सर्वर हमारे इंटरनेट पे रहेंगे उस सब के IP एड्रेस रहते हैं. सो जो ये IP एड्रेस रहते हैं वो यूनिक IP एड्रेस रहते हैं और वो 4 सेपरेट डॉट से वो आइडेंटिफाई होते हैं. तो देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं हमारे URL के. एक तो वो क्या है IP एड्रेस है, तो उसमें नंबर्स रहेंगे फ्रॉम 0 to 9 और वो सेपरेट होंगे 4 डॉट से. ओके, तो ये एग्जांपल है किसका, IP एड्रेस का. सो इट इज़ हार्डर टू पीपल टू रिमेंबर नंबर देन द रिमेंबर वर्ड कॉम्बिनेशन. सो एड्रेस आर गिवन दैट इज़ वर्ड बेस्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज अ URL. देखो कोई भी PC रहेगा ना, उसका IP एड्रेस रहेगा, तो उस IP एड्रेस से मतलब वो नंबर से जब नंबर बढ़ा रहेगा तो वो कोई भी PC को आइडेंटिफाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर से उसको टेक्स्ट के साथ कंबाइन करके हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, एड्रेस क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ URL. URL क्या है, जो भी हमारा वेबसाइट के उसका एड्रेस रहेगा. ओके, तो देखो यहाँ पे URL and the IP number are one and the same. The standard made to give the address of the any resource on the internet that is part of www. देखो IP एड्रेस और URL जो है वो दोनों सेम ही है. तो देखो यहाँ पे URL का एक एग्जांपल दिया है, तो ये जो URL दिया है उसकी मदद से हम लोग वो पेज इंटरनेट पे फाइंड कर सकते हैं. तो URL बेसिकली क्या रहता है, वो एड्रेस रहता है. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डोमेन नेम. तो डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम आर यूज टू आइडेंटिफाई वन और मोर IP एड्रेसेस. देखो डोमेन नेम किसके लिए होता है, तो आइडेंटिफाई IP एड्रेसेस. ओके, सो फॉर एग्जांपल द डोमेन नेम microsoft.computer रिप्रेजेंट अबाउट अ डजन IP एड्रेसेस. देखो डोमेन नेम की इसके लिए यूज़ होता है कि हमारा जो IP एड्रेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है. सो डोमेन नेम आर यूज इन URL टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब पेज. ये जो डोमेन नेम देखो कोई भी ये हमारा कंप्यूटर रहेगा ना, उसके साथ उसका IP एड्रेस रहेगा. बट जो है कोई भी कंप्यूटर का आप लोग को IP एड्रेस जो है वो याद नहीं रहता है क्योंकि वो नंबर्स में रहते हैं. तो उसके लिए वहाँ पे डोमेन नेम यूज़ करता है और डोमेन नेम जो है वो URL में अवेलेबल होता है. तो देखो यहाँ पे एक वेबसाइट URL दी है www.kevardias.yalosai.com. तो ये क्या है, वो हमारा URL है. उसमें डोमेन नेम दैट इज़ kevardiasar.yolasite.com वो क्या है, डोमेन नेम है. तो यहाँ पे देखो देर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सच डोमेन्स, जहाँ पे डोमेन्स के नेम अवेलेबल है. तो कौन कौन सा डोमेन है, एक तो देखो आपका गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यूज़ करती है. दूसरा हमारा EDU दैट इज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूज़ होता है. देन ORG दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल नॉन प्रॉफिट में यूज़ होता है. देन मिल दैट इज़ मिलिट्री. देन नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बिजनेस. देन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन. देन कनाडा एंड थाईलैंड. ये क्या है, डिफरेंट हमारे डोमेन्स है. ओके, सो डोमेन नेम किसके लिए यूज़ होता है, जो भी हमारे IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए डोमेन नेम यूज़ होता है. देन और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बुकमार्क एंड हिस्ट्री. बुकमार्क एंड हिस्ट्री क्या रहेगा, तो if we find a website we want to view later, then it can be hard to memorize the exact web address. So bookmark is known as a favorite, are a great way to save and organize special website
so we can revisit again and again. देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है पीकॉक की, तो मैंने आज उसको सर्च किया, तो कोई एक वेबसाइट है जिस पे पीकॉक का इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली प्रोवाइड किया है, तो मुझे वो कल फिर से वो वेबसाइट का नेम याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, जो भी हमारा वो वेबसाइट रहेगा उसको मैं एज अ फेवरेट मार्क कर दूँगी। वो क्या होता है, बुक मार्क। तो बुक मार्क करने से क्या होगा कि हम लोग जो भी हमारी वेबसाइट है उसको हम लोग सेव कर के रखेंगे और कल फिर से उसको हम लोग विजिट करेंगे। ओके, सो सिंपली लोकेट एंड सिलेक्ट द स्टार आइकन टू बुक मार्क द करंट पेज। देखो कोई भी पेज को आपको बुक मार्क करना है तो आपके जो भी वेब पेज रहेगा उसके राइट हैंड साइड पे स्टार का सिंबल दिखेगा। देखो यहाँ पे स्टार का सिंबल है, तो उस पर आपको क्लिक करेंगे ना तो आपका पेज जो है बुक मार्क हो जाएगा। वहाँ पे बॉक्स में आप लोग को जो भी पेज है उसका नेम लिखना रहेगा, तो बुक मार्क हो जाएगा। तो बुक मार्क हो जाएगा तो क्या करेंगे कि हम लोग दूसरे दिन फिर से वही साइट वो ओपन कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग ने देखा हिस्ट्री जाननी है हमारी, तो हम लोग हिस्ट्री टैग पे जाके क्लिक करना है। ओके, देन और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाउ टू डाउनलोडिंग अ फाइल। तो भी फाइल को डाउनलोड कैसे करेंगे। सो लिंक do not always go to the another website. In such case, it is point to file that can be downloaded or saved or computer. So if we click the link to a file, it may download automatically. But sometimes it is just open within the browser instead of downloading. देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोग को कोई भी डाउनलोड करना है, कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली आप लोग को जो डाउनलोड ऑप्शन है वो उस पर क्लिक करना है। सो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द ओपनिंग द ब्राउज़र वी कैन राइट क्लिक द लिंक एंड सिलेक्ट द सेव लिंक एज अ ब्राउज़र फॉर स्लाइटली रॉन्गली। देखो यहाँ पे कोई बार क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी लिंक को ओपन करना है फाइल में, तो क्या होता है कि ब्राउज़र में ही ओपन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना होगा, तो आप लोग को क्या करना है कि राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक पे आप लोग को सिलेक्ट और सेव लिंक पे क्लिक करना है। सो इन दिस वे यू कैन डाउनलोड योर फाइल। द नेक्स्ट है सेविंग द फाइल। So sometimes we want to save an image from the website to the computer. So to do this, right click the image and select the save image as option. देखो सेव इमेज सेव करना है हम लोग, तो कैसे सेव करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने इमेज फाइंड किया है, ओके, और उसको मुझे सेव करना है, तो कैसे सेव करेंगे। जस्ट आप लोग को राइट क्लिक करना है और सेव इमेज पे क्लिक करना है, तो जो भी आपका इमेज रहेगा वो सेव हो जाएगा। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ www, देन व्हाट इज़ इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ओके, देन वी लर्न व्हाट इज़ डोमेन नेम, URL, वेब ब्राउज़र। ओके, सो आई होप you all understand our today's topic. Thank you.